اشتیاق بھائی، پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں وفاقی کابینہ کی شمولیت میں. یہ بار ایک ہفتے سے جاری جنگ آپ نے جیت لیا، کیا نوشہر کے لیے کیا پروگرام لائیں گے اور آئندہ کیا پروگرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام لیگی کارکنوں کا، اپنے ضلع کا، خیبر پختونخوا کا، اور پھر پورے پاکستان سے جتنے میرے کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے، جنہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی، ہمارے بات کو پوری دنیا تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارا بھرپور ساتھ دیا. ہمارا موقف اپنی جگہ پر درست تھا، ہم اپنے موقف پر ڈٹے تھے. موقف ہم نے اپنی قیادت کو بھی پہنچایا. وزیر اعظم صاحب نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ انفارمیشن میں ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے، اور پھر خیبر پختونخوا کے لیے کچھ انہوں نے اسپیشل ٹاسک دیا ہے. تو میری سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ میں مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے جو کارکنان ہیں، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے محروم ہیں ہر قسم کی حکومتی سپورٹ سے، تو انشاءاللہ ان کا احساس محرومی ختم کریں گے اور پارٹی کو منظم کریں گے. کوئی بھی کارکن اپنی جماعت کا وہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی جماعت اور اپنے نظریے کے ساتھ سچے اور کھرے ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، ان کو اللہ ان کی محنت کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا، جو انہوں نے ہم پہ یہ اعتماد کا اظہار کیا، اور ہم اب یہ وعدہ ہے اپنی قوم سے، پاکستانی عوام سے. میری ڈیوٹی ڈبل ہے، اسلام آباد کی بھی ہے اور خیبر پختونخوا کی بھی ہے. وہ ڈیوٹی اور یہ دونوں انشاءاللہ اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں اپنی ٹیم کے تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کمر باندھ لیں، آپ سب لوگ اب کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. مجھ سے کسی نے پوچھا، بڑے مزے کی بات کی، پوچھا کہ بھئی آپ کا کام کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایریڈیکیشن آف کلٹس. مجھے جو اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے وہ فتنے اور فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. وہ میری ڈیوٹی بنیادی طور پر یہی ہے، اور یہ کام ہم مل کر کریں گے. بالخصوص جو نوجوان نسل کو جس بے راہ روی پہ ڈالا گیا ہے ان کو واپس موڑ کے لائیں گے. ہم یہاں پر کھیل کے میدانوں کو آباد کریں گے. ہم نئے اسٹیڈیم، نئے کھیل کے میدان، لڑکوں کو، بچوں کو لیپ ٹاپ دیں گے، ان کو اسکالرشپس دیں گے کہ وہ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم حاصل کر سکیں. اور انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا تو ہم نوجوان نسل کے لیے ایک بھرپور اور جامع پروگرام، پاکستان کے جو وزیر اعظم کا پروگرام ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، اس کے چھتری تلے نیچے ہم ایک بہت بڑا پیکیج انشاءاللہ لا رہے ہیں، جس سے ہم خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کو جمہوری راستوں پر ڈالیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو ریاست کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف استعمال ہو. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کا استعمال ایسا ہو کہ وہ گھر کے چراغ بن کر اپنے گھر کو ہی آگ لگا دیں. تو انشاءاللہ ہم نے یہ سارا کام مل کے کرنا ہے. اور ایک بات، میں جتنے سرکاری محکمے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، میں ان کو بالخصوص کہتا ہوں کہ اب خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے کارکن کو سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اور ہمارے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی عزت نفس کی بحالی میں آپ سب نے کام کرنا ہے. ہمارے کارکنوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت بڑا صبر کیا. اس کے بعد اب آپ کی بھی ڈیوٹی ہوگی. جو بندہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرے گا، جو بندہ کرپشن کرے گا، جو بندہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا، وہ وفاقی حکومت میں خیبر پختونخوا میں نہیں رہے گا. انشاءاللہ وہ پھر گھر ہی جائے گا. تو یہ میرا تمام دوستوں سے اور میری تمام ٹیم سے یہ وعدہ ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اب آپ کمر کس لیں اور تیار ہو جائیں. انشاءاللہ وقت آ گیا ہے، کام کریں گے. ہر ایک ضلع میں جائیں گے، بالخصوص یوتھ کنونشن کریں گے، طلبہ کنونشن کریں گے. مسلم لیگ نون کو ہر جگہ پر، ہر ضلع میں منظم کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس سے پہلے
बल्दियाती इलेक्शन तो अगले साल है, उससे पहले मुस्लिम लीग नून के कारकुन को इंशाल्लाह तैयार करेंगे। कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन वो इतने तैयार हो जाए कि वो खुद इलेक्शन के लिए आगे हों और फिर हम उनको भरपूर सपोर्ट भी देंगे। तो इंशाल्लाह मेरा आपके साथ ये वादा है कि इंशाल्लाह मैं अपने सेक्रेटेरिएट बना रहा हूँ कि मैं सूबे की सतह पर, अपने ज़िले और हल्के की सतह पर, और फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद की सतह पर हम इसको मुनज़्ज़म करके एक इस्टेब्लिश सिस्टम बनाकर हम डिलीवर करेंगे, परफॉर्म करेंगे और हम दिखाएंगे कि जितना कम तहरीक इंसाफ अपनी 12 साल हुकूमत में नहीं कर सकी, इंशाल्लाह हम 1 साल में करके देंगे। गंडापुर साहब, आपको मौका भी मिला, लेकिन आपने 24 नवंबर, 8 अक्टूबर, फला सितंबर, अगस्त की काल, जुलाई की काल, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। अब खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को, उनको भी समझ आ गई है, इस सूबे के लोग भी समझते हैं कि आपने, आपके लीडर ने, इमरान खान ने इस सूबे के लोगों को इस्तेमाल, उन्होंने अपनी भट्टी क्या कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या आप इस मुल्क के बैरूनी दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? इनके पास काम करने का कोई हीला बहाना भी नहीं है, कोई प्लान तो छोड़े, इनके पास कोई झूठा मोटा प्लान भी नहीं है। मैं अक्सर इनको कहता हूं कि यार वो 50 लाख घर छोड़ दो, मुझे उसका नक्शा ही दिखा दो, किसी के पास नक्शा भी नहीं है। पर अब आए रोज ये हमदर्दी के वोट समेटने के लिए, उस दिन कहते हैं कि इससे पहले एक डकोसला छोड़ा गया तो कहते हैं कि इमरान खान जो है तो उसको जहर दिया गया। हमने कहा भाई डॉक्टर ले आओ, डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, कोई जहर नहीं था। बुशरा बीवी कहती है कि मुझे जहर दिया गया। हमने कहा तुम भी चेक करा लो, कुछ भी नहीं हो। पता चला कि जी इमरान खान के कान में दर्द हो रहा है। माँ सदके, इससे ज्यादा तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो भाई बात ऐसी है कि अब ये झूठे ड्रामे, ये ढकोसले, ये बंद करना होंगे। और अब कहते हैं कि जी उनका रोजा होता है और उनको अफ्तारी नहीं करनी की इजाजत नहीं दी जा रही, उनको सहरी की इजाजत नहीं दी जा रही। मैंने कहा इससे पहले अगर उसने कभी रोजा रखा हो तो इस साल नहीं रखे। कभी उसने किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, जेल में टाइम मिला है, कम अज कम सूरह फातिहा ही पढ़ ले, सूरह इखलास ही सीख ले, लफ्ज़ खातमुन नबीयीन कहना ही सीख ले। तो झूठे प्रोपेगंडों का भी ये जमाना नहीं रहा। झूठे प्रोपेगंडा से काम नहीं चलता। जो लोग कहते हैं, ये बात मेरी सुन ले, जो कहते हैं कि फार्म 47 की जाली हुकूमत, मैं उनको कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट जाली है। पहले मैं कहता था, आज मौलाना फजलुर रहमान कहता है। मौलाना साहब फरमाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, अगर इलेक्शन ऑडिट की बात करते हैं पीटीआई वाले, तो वो पहले बात करें कि ये ऑडिट शुरू हो खैबर पख्तूनख्वा से। अगर यहाँ से शुरू हो और ये हल्के खुल जाए तो क्या ये नौशहरा का इलेक्शन हमने हारा है? नहीं। हमसे कोई इलेक्शन जीत सकता था? नहीं। तो हम तो इनको कहते हैं कि ऑडिट शुरू करना है तो नौशहरा से शुरू करो। ये जुल्फकार बादशाह, ये आपको असम्बली में मिलेगा, इख्तियार वली आपको असम्बली में मिलेगा, ये हमारे दीगर उम्मीदवारान आपको असम्बली में मिलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरक्की की बात करनी है तो आओ हम तुम्हें साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई बदमाशी करता है और कोई शरारत करता है तो आप याद रखो कि कुछ जिम्मेदारियां हमें भी सौंप दी गई हैं, हमने उसको भी निभाना है। हम भी फिर आराम से नहीं बैठेंगे और फिर कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि आज तो इंतहाई खुशी का दिन है आपके और आपके वर्करों के लिए, लेकिन इस सूबे के अवाम को कुछ मसाइल का भी सामने है जो वफात से रिलेटेड है, जिसमें खासकर बिजली का बहरान जो है, बिजली की लोड शेडिंग का, ये गैस की लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या इकदाम उठाएंगे आप सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए? सबसे पहले मेरा इंशाअल्लाह हम जो बिजली का लोड शेडिंग है, बिजली के लोड शेडिंग की सबसे पहले मैं आपको नुक्स बता दूं कि जिस फीडर पर जितने लॉसेस होते हैं वहाँ पर उतनी लोड शेडिंग होती है। 12 घंटे की लोड शेडिंग हमारे वज़ीर आला साहब खुद मान कर आए। अवैस लगारी साहब जो वफाकी वज़ीर बिजली तवानाई है, उनके साथ ये एग्रीमेंट करके आए। अब मैं दोबारा इसका हम जायज़ा लेंगे, हम बैठेंगे और हम इसी आवाम को इतना रिलीफ हम दे सकें
इंशाल्लाह हम आवाम को इसमें रिलीफ देंगे कि बिला ताअत्तुल बिजली जाए। और उससे बड़ी खुशखबरी आपको बता दूं कि इंशाल्लाह वल अज़ीज़ बहुत जल्द आप सुनेंगे कि हम बिजली की कीमत इंशाल्लाह उसको आधो आध कम कर देंगे। इख्तियार भाई ये बताएं, इख्तियार भाई ये बता रहे पाकिस्तान के खिलाफ आपने सियासी जंग शुरू करी थी, लेकिन वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए, तो यहाँ पे जो इख्तियारात है इसकी इख्तियारात की जंग नहीं चलेगी यहाँ पे? परवेज़ खटक साहब को उनके मुतालिक मेरा जो मौक़िफ़ था वो कल भी था, वो आज भी। आपको पता है मैं ऐसा ही बंदा हूँ, जो मौक़िफ़ मैंने यहाँ पे दिया, जो मैंने सोशल मीडिया पर दिया, वही मौक़िफ़ मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी बता दिया। अब इस वक्त परवेज़ खटक साहब को जो इख्तियारात हासिल हैं वो उनको खुद नहीं मालूम कि उनके इख्तियारात क्या होंगे। एक तो उनके अपने वज़ारत दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो उसके जो वज़ीर हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, उसके जो वज़ीर मुमलिकत हैं वो तलाल चौधरी साहब हैं, और परवेज़ खटक साहब जो हैं तो उनको ये उमूर दाखिला के देखने का उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो अभी सौंपी जाएगी कि वो किसी ख़ास एक साइड पे एक ख़ास नुक्ते को वो उसको देखेंगे। वो मशीर बन गए हैं, तो जो टास्क उनको दिया गया है तो देखते हैं अगले 2 महीने में पता चल जाएगा कि वो कितना डिलीवर करते हैं। बाकी इसकी वजाहत तो राना सनाउल्लाह खान ने भी कर दी कि परवेज़ खटक जो है तो वो मुस्लिम लीग नून का उसकी वो चॉइस नहीं है, कोalition गवर्नमेंट है। तो मुख्तलिफ पार्टियों में जिस तरह इसमें अब्दुल अलीम खान साहब शामिल हैं, जिस तरह इसमें MQM शामिल है, जिस तरह इसमें काफ लीग शामिल है, जिस तरह इसमें आपने देखा कि पीपल्स पार्टी भी प्रेसिडेंट हाउस में और स्पीकरशिप पर, डिप्टी स्पीकरशिप और चेयरमैन सेनेट पर, गवर्नरशिप पर खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब में वो हैं, और उनके पास बलूचिस्तान में हमारी अक्सरियत थी, हमने बलूचिस्तान में उनको हिस्सा दिया, उनको हमने वज़ीर आला बनाने का मौका दिया, वहाँ पर उनकी हुकूमत है। तो इसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर होगा तो वो जो सिस्टम बना है ये कोalition गवर्नमेंट का है, और परवेज़ खटक को उस कोalition गवर्नमेंट में एक चंक मिला है। तो हमारा इख्तिलाफ वही है, कल फिर इलेक्शन अगर आ जाएगा हम फिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। जो टास्क उनको असाइन किया गया है उम्मीद है वो अपना काम करेंगे, और जो हमारा काम है वो हम करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको जो ओहदा मिला है खैबर पख्तूनख्वा कोऑर्डिनेटर का, तो इसमें कुछ इदारे शामिल है जिसमें IT और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी शामिल है, तो क्या आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर सहाफ़ियों के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? मैं ये जो कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है तो इसमें हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि हमने सबसे पहले टॉप टू बॉटम जितने हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं उनके साथ हमने एक लाइजोन बनाना है, उनके साथ अपने राब्ते बहाल करने हैं। फिर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको हमने अपने लूप में लेना है, उनके साथ अपने राब्ते बनाएंगे। हमने तमाम सहाफ़ियों को पाकिस्तान की रियासत का, निज़ाम हुकूमत का, निज़ाम वतन का, उसका हमने हिस्सा बनाना है, ताकि ये जो मुल्क के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ जो डॉलर कमाओ मुहिम पे लोग लगे हुए हैं, जिससे पाकिस्तान को आए रोज़ नुकसान होता है, हमारी जमहूरियत को, हमारे इकोनॉमी को, हमारी तशख़्ख़ुस को बैरून मुल्क जिसको मसख़ किया जाता है उसको हटाएंगे, और सहाफ़ियों के साथ बैठकर, सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमों के साथ बैठकर हम तय करेंगे कि हम विदिन सर्टन लिमिट ऑफ डोमेन लॉ एंड रूल्स जितना हमें इजाज़त देता है तो हम सहाफ़ियों को फैसिलिटेट करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।